علماء کو انبیاء کا وارث ہونا چاہیے۔ آج ان میں سے بہت سے لوگ امت کو ایک ایسے اسلام کے ذریعے بے حس کر رہے ہیں جو اس کے بنیادی اخلاقی پیغام سے خالی ہے۔ علماء لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ کے عوام کو خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے دیں۔ میں نہیں جانتا کہ لوگ اس خون کی نہر کے بعد اپنے لیے کیسے عذر تلاش کرتے ہیں۔ غزہ کی عورتوں، بچوں اور باپوں کی چیخیں اور پکار جو سڑکوں پر حقیقتاً دم توڑ رہے ہیں، کیونکہ فتوے، فورمز اور بین المذاہب کونسلیں جنہوں نے اس ظلم کے لیے ایک طرح کی دینی اور سیاسی مہر تصدیق لگا دی، یعنی خاموشی سے تکلیف برداشت کرو۔ اگر آپ بس خاموش بیٹھ جائیں اور اپنے ظلم یا تکلیف کے خلاف کچھ نہ کریں تو شاید دنیا آپ کو انسان سمجھنے لگے، اور یہی اسلام سے ردائی ہے۔ جب آپ ظالم کو اندھا اور دینی تحفظ فراہم کر رہے ہوں۔ اس ہفتے میرے مہمان ہیں نہایت ذہین ڈاکٹر فراز شریف، جو اسلامی فکری تاریخ کی ماہر ہیں۔ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی حاصل کی ہارورڈ سے، جہاں انہوں نے مغربی افریقہ کی اسلامی روایات کا مطالعہ کیا اور اسٹینفورڈ کے عباسی پروگرام میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ آئیے ان علماء کے نام لیتے ہیں جو مسلم امت کو بے حس کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فراز شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تھنکنگ مسلم میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے، پس منظر میں غزہ میں قحط اور ہماری مسلم امت کے خلاف ہولناک جرائم کے ساتھ۔ اب میرا خیال ہے اگر آپ برا نہ مانے تو آپ ایک فلسطینی ہیں جن کی جڑیں حجاز میں ہیں اور ایک بہت ہی معروف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے پردادا وزیر الکاف فلسطین سے تھے، جنہیں دراصل ان کی صہیونیت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے قید کیا گیا تھا۔ آپ نے مراکش، سینیگال، اردن اور مصر میں اسلام کی تعلیم حاصل کی ہے، تو کئی لحاظ سے آپ کو اسلام میں علمی روایت اور جدید اور قدیم دور میں اسلامی علم کی وسعت کا بہت اچھا اندازہ ہے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ غزہ کے معاملے پر اس امت کے علماء ناکام ہو گئے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی محمد، یہ میرے لیے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ اس تکلیف دہ مگر ضروری موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ جب میں اس سوال کے بارے میں سوچتا ہوں تو فوراً مجھے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، جنہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے مجھے تمہارے لیے دجال اور مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے، اور ان زبانوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، گمراہ کرنے والے علماء، گمراہ کرنے والے علماء، گمراہ کرنے والے علماء، یا عمومی طور پر ائمہ، اس سے مراد رہنما یا علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نہ تو آپ کو کوئی فقیہ یا جینیس ہونا ضروری ہے، مسلم قیادت میں، سوچ میں اور انسانیت اور ہماری امت کے اس تباہ کن دور میں وقت کے تقاضوں پر پورا اترنے میں واقعی ایک بڑی کمی ہے، اور میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں سوچ سکتا ایسا واقعہ بیان کرنے کے لیے جو غزہ کے بل سے ہی سامنے آیا ہو، جہاں ایک معزز عالم ڈاکٹر فیض ابو شاملہ نے ایک سخت ویڈیو میں سامنے آ کر بات کی، اور انہوں نے کہا، اے ہماری امت کے بڑے بڑے علماء، اے الازہر کے علماء، اے علماء، اے مفتیان، اے فقہا، برائے کرم ہمیں بتائیں، ہمیں روشنی دیں، ہمیں آپ کی فوجیں نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی روٹی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، برائے کرم بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بھوکے تھے تو اپنے پیٹ پر پتھر کیسے باندھا تھا؟ کیا وہ پتھر بڑا تھا؟ کیا وہ پتھر چھوٹا تھا؟ کیا انہوں نے اسے اوپر رکھا یا نیچے؟ تو یہ ایک طرح سے خشک اور سخت قانونی رویے پر شدید تنفید تھی۔ یہ رویہ دراصل غم اور تکلیف کے اصل جذبے سے اور موت و تباہی کے اس پیمانے سے بہت دور ہے جس کا سامنا ہمارے بھائی بہن اپنی مدد آپ کے تحت اس قتل گاہ میں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں، صہیونی ریاست کے ہاتھوں۔ تو اگر ہم آج اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن ہمارے لیے بس ایک خوبصورت سا زیور ہے جو ہماری الماریوں میں رکھا ہے، اور اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو گے، تم اسے ترک کر دو گے؟ حالانکہ یہ ایک زندہ وحی ہے جو عمل کے لیے ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم واقعی اسے پڑھیں ان حالات میں، ان فتنہ انگیز زمانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ خود بھی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ یہ صرف غزہ کے لوگ نہیں ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے امت تمہیں کیا ہو گیا ہے،
हमारे कायबीन आपको क्या हुआ? अल्लाह खुद फरमाता है मालकुम, तुम्हें क्या हुआ? और वो मुलाकिम की इस आयत को मुताबिद बार इस्तेमाल करता है, यानी मालिकुम ला तुनासिनून, आपके साथ क्या मामला है? क्या आप एक दूसरे की मदद नहीं करते? क्या आप एक दूसरे की मदद को नहीं आते? वो ये भी कहता है जल्दी अल्लाह मालकुम कैफ तहकुमून, दो बाएं, आपको क्या हुआ है? आप कैसे फैसला करते हैं, या आप कैसे सोचते हैं, या सोचते ही नहीं? हर मुसलमान को सोचने वाला मुसलमान होना चाहिए। और फिर भी ये खिताबत और फैसले की कमी बिल्कुल खौफनाक है। और फिर अल्लाह ये भी फरमाता है मालकुम ला तंतकून। इस मौके पर जब सईदना इब्राहिम ने बुतों से कहा तुम क्यों नहीं बोलते, कहा हम भी बुतों की तरह बहरे, गूंगे और खामोश नहीं है। हम नान इंसाफी के खिलाफ एक मुत्तहिदा आवाज में इकट्ठे होने के काबिल नहीं हैं। और फिर मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इनफिरू फी सबीलिल्लाह इफ्तक़ल्तुम, तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम्हें अल्लाह की राह में जदोजहद के लिए बुलाया जाता है तो तुम्हारे कदम भारी हो जाते हैं, यानी आप काहिल और खौफज़दा हो जाते हैं। और फिर आखिर में मा नकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह को उसका हकीकी कद और अपने दिलों में जगह नहीं देते? सच्चा तकवा ये हमारे मौजूदा लम्हे में वाज़े तौर पे हमसे बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि जदीद असरी इल्मी वज़ाइफ में कोई मसला है। आपके एक ज़ैली मजमून में आप कहते हैं कि ये उलमाए इस्लाम को अखलाकियात से आरी खाली रसूमात में तब्दील करके इसे बिगाड़ रहे हैं। आप इससे क्या मुराद लेते हैं? खाली रसूमात जो अखलाकियात से आरी हों? हाँ, तो एक लिहाज से अगर आप गौर करें तो कुरान में बनी इसराइल का इतनी बार जिक्र क्यों आया है? हजरत मूसा ने सलाम का तकरीबन 136 बार जिक्र क्यों आया है? इसकी वजह यह है कि ये हमारे लिए एक आईना होना चाहिए, इन लोगों का, उन गुजरे हुए अहले किताब का, और ये कि उन्होंने अपनी वही के साथ क्या किया, कैसे उन्होंने इसे महज एक मरहम या तस्कीन बना दिया। अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए, ये कहने के लिए कि देखो मैं दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, तो मैं जरूर बहुत अच्छा इंसान हूँ और खुद को शाबाश देता हूँ। लेकिन इस्लाम बुनियादी तौर पे इसलिए नहीं आया कि आपको अच्छा महसूस कराए। तौहीद अपनी असल में सिर्फ इसको दिल में बिठा लेने से एक इनकलाबी कुव्वत बनकर आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के पास इसलिए नहीं आए कि बस अमन कायम रखें और जैसा है वैसा ही रहने दें। सिर्फ आखिरी वही लेकर आने की वजह से ही बहुत कुछ बदल गया था और लोगों को खौफ के जुआ और जिस्मानी और रूहानी बुतों, जाहिर और बातिन शिर्क से खुद को आज़ाद करना पड़ा ताकि वो हकीकत में इस बात पर अमल कर सकें और इसका इजहार कर सकें कि मुहम्मदी पैरोकार होना क्या मायने रखता है, यानी चलता फिरता कुरान होना क्या है। ये एक ऐसी चीज है जो नजर भी आती है और सांस भी लेती है, और ये जालिमों के लिए कुछ बेचैनी का बायस बनती है। एक सच्चा मुसलमान अपने इर्द गिर्द के जालिमों को अच्छा महसूस नहीं होने देता। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, बदकिस्मती से जो मैं देख रहा हूँ, और ये सब उलमा के बारे में दुरुस्त नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हमारे ज्यादातर उलमा ने अपनी अथॉरिटी छोड़ दी है ताकतवरों की खिदमत में, बेलगाम रियासती जुल्म जबर की खिदमत में। उन्होंने हमें मायूस किया क्योंकि वो मुसीबत ज़दा दिलों से बात करने से कासिर हैं, निगरानी पर बात करने से कासिर हैं, ड्रोन्स पर बात करने से कासिर हैं, और हिरासती कैंपों पर बात करने से कासिर हैं, जारी हॉलोकॉस्ट जैसी सूरत हाल पर बात करने से कासिर हैं, ज़मीर के कैदियों और आम कैदियों और मुस्लिम दुनिया में सियासी कैदियों पर बात करने से कासिर हैं। और इसके बजाय वो चाहते हैं कि हम सिर्फ रटे रटाए फिक़ही सवालात पर तवज्जो दें। या आप जानते हैं नमाज में हाथ कैसे बांधे? और अगर आप जानते हैं हम क्या करें, कुछ मखसूस फतावी, ऐसे फतावा जो सिर्फ हमें इस्लाम के मामले में गफलत और बेहिसी में मुब्तला करने का काम करते हैं। और मेरे ख्याल में ये इस्लाम के साथ एक तरह का सेक्युलर रवैया है, क्योंकि आखिरकार रियासती ताकतें बहुत दिलचस्पी रखती हैं कि ऐसा इस्लाम पैदा किया जाए जो इस तरह बेहिस और पुरसुकून हो, जो आपको ये वहम देता है कि आप रिवायत के खिलाफ जा रहे हैं, आप स्टेटस को के खिलाफ हैं, आप मजहबी है, आप अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन अक्सर औकात ये चीजें महज फरेब होती हैं और हमें इन छुपे हुए बुतों से होशियार रहना चाहिए,
जो शायद जाहिलियत के दौर के लात, मनात और अजी की तरह नजर ना आए, लेकिन इस नए दौर की मुश्रिकाना और जाहिली फिजा के बारे में कुछ कहने को जरूर है जिसमें हम आजकल जी रहे हैं। आज 2 अरब से ज्यादा लोग महफूज पीने के पानी तक रसाई से महरूम हैं। उनकी रोजमर्रा की हकीकत यह है कि उन्हें जिंदगी की बुनियादी जरूरत यानी पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। आलूदा पानी के साथ हर घूंट में हैजा, पेचिश और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा होता है जो हर साल लाखों जानें ले लेती हैं। आप इस हकीकत को बदल सकते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे मकामात पर जान बचाने वाले पानी के कुएं स्पॉन्सर करके, गजा जैसे इलाकों में पानी के ट्रक भरवाकर या बहरान के वक्त पानी की बोतलें तकसीम करके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने के लिए पानी देना सबसे बेहतरीन सदका है। उनके नक्शे कदम पर चलें और आज ही साफ पानी का तोहफा दें। अपनी हमदर्दी को उम्मीद में बदले। इस सवाल के जवाब में आपने कहा कि इस्लाम एक इनकलाबी कुव्वत है। मेरा मतलब है इस बात को वाज़ेह करें, क्योंकि कुछ मुसलमान ये कह सकते हैं कि जरा ठहरें, ये तो मुझे बहुत मार्क्सिस्ट लगता है। ये एक इनकलाबी कुव्वत से आपका क्या मतलब है? हाँ, तो इनकलाब बहुत से लोगों के लिए खतरे की घंटी बजाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक आमतौर पर सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या मार्क्सी सोच से होता है। लेकिन अगर हम खुद कुरान को देखें तो पहले उसूलों की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है? हर नबी को दुश्मन से आजमाया गया, हर नबी को जुल्म से आजमाया गया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक आइकनोक्लास्ट की। सैयदना मूसा ने फिरौन का मुकाबला किया और वाकई इसके जुल्म का मुकाबला करना पड़ा। और फिरौन हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसराइल कर रहा है। उनका रिवायती दुश्मन, उन्हें बस आईना देखना चाहिए और समझना चाहिए कि बच्चों का कत्ल और बुनियादी तौर पर खून रेजी फैलाना और बोना और अपनी कोई गलती ना देखना और खुद को सबसे बेहतर समझना। सुभान अल्लाह। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला को भी अपने सबसे करीबी और प्यारे लोगों, अपनी कौम कुरैश की तरफ से ईज़ा रसानी और तकलीफ का सामना करना पड़ा। और मैं ये बात किसी नौ आबादियाती दौन के बाद की तहरीरों या इस तरह की किसी चीज से नहीं ले रहा, हालांकि इस जखीरे से भी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के मुसलमान जहन में ना इंसाफी से निमटने के हवाले से एक बेचैनी पाई जाती है, और वो इस बात से डरते हैं कि अगर वो नाइंसाफी के बारे में बात करेंगे तो कहीं वो वोक या गैर मुत्तकी मार्क्सिस्ट मादी जाल में न फंस जाएं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको खौफ के खिलाफ मंशूर देखने के लिए पैगंबराना रिवायत और खुद कुरान के अलावा कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत में जो चीज हमें इन बुतों और फिरौन का मुकाबला करने से रोकती है वो हमारी दुनियावी वाबस्तगियां, खौफ और बुज़दिली है। और मेरा ख्याल है कि कुरान में खौफ का जिक्र तकरीबन 124 बार आया है। तो अल्लाह ताला को हमारे बारे में ये बात मालूम है। अल्लाह जानता है कि इंसानियत मखलूक से डरने के एहसास में मुब्तला हो सकती है, ठीक है? हत्ता के अल्लाह ताला ने मूसा से फरमाया, जाओ फिरौन के पास जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो खौफ बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक इंसानी सिफत है। लेकिन जब हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ खौफ है, मगर हम इस खौफ को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो उसे हमारी हालत से दूर कर दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम मखलूक से खालिक से ज्यादा डरने लगें। और मेरा ख्याल है कि ये वो रूहानी हालत नहीं है जिसके साथ हम अपने रब से मिलना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक। मेरा मतलब है मैंने मुख्तलिफ मकातिब फिक्र और पस मंजर के कई उलमा को देखा है जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स को भर देते हैं, हालांकि गजा में नस्ल कशी हो रही है और गजा का कभी जिक्र ही नहीं होता। शायद दुआ में वो गजा का कोई हवाला दे दें, लेकिन गजा उनके जहनों से बहुत दूर है। और जैसा कि आपने कहा, वो रूहानियत के उस खोखले तस्वुर पर बात करते हैं। लेकिन क्या इसमें कसूर हमारा नहीं है? मेरा मतलब है हम खुद इन हॉल्स में बैठते हैं, हम उन मुबल्लिगीन को सुनने के लिए $20-30 कभी इससे भी ज्यादा अदा करते हैं, हम उनकी बातों पर उन्हें दाद देते हैं। क्या ये वाकई उम्मत का मसला है? अगर हमारे अंदर अखलाकियात और उसूलों का कोई शऊर होता तो हम अपने उलमा से ये मुतालबा करते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, हम रह रहा है, और मैं इसको डोपामीन इस्लाम या रूहानी नशा कहता हूँ।
हम इन कॉन्फ्रेंसों की तरफ शायद इसलिए दौड़ते हैं कि हमें अच्छा महसूस हो, जैसे हमें एक झटका मिलता है, थोड़ी देर के लिए रूहानी तौर पर बुलंद महसूस करते हैं, फिर घर आ जाते हैं और हमारे पास कोई हकीकी बुनियाद नहीं होती, और कुछ बड़ा, कुछ पायदार और एक अमली, कुरानी और नबवी नुक्ता नजर में जीने वाला। और ये वाकई इस आयत के मेगा चर्च स्टाइल की नकल करता है। और मैं खास तौर पे मगरबी मुसलमानों को कसूरवार ठहराता हूँ, क्योंकि इन्हीं के पास सबसे ज्यादा सहूलियात हैं। वो माशाल्लाह बेशुमार वसाइल में डूबे हुए हैं और उनके बोलने की आजादी की हद ज्यादातर मुस्लिम दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा है, और फिर भी वो सब अपने ताज़ा तरीन टेस्ला को अपडेट करने या बेहतर प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये एक तरह का खुशहाली वाला इस्लाम है, और जब तक हम उसको चंदा दे दें, उसको चंदा दे दें, बस इतना काफी है, या शायद कुछ बाइकआउट कर लें, बस इतना काफी है। लेकिन बड़ी सहूलत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और हमारे तमाम वसाइल, हमारी डिग्रियों का क्या फायदा अगर हम सूडान, यमन, सोमालिया, शाम वगैरह जैसे मकामात पर अपने भाइयों के लिए आवाज ना उठा सके। ये बहुत दिलचस्प बात है। मैं उल्मा के मौजू पर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जहनियत, शायद इसका बारीक बीनी से जायजा लेना जरूरी है। आपने यहाँ एक बात कही है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप किसी कानूनी नुक्ते नजर से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास मगरिब में ये सहूलियात हैं और हम बोल सकते हैं, और जाहिर है जो मुसलमान अरब अमीरतों और मुस्लिम हुकूमतों के तहत हैं उनके पास आमतौर पर यह सहूलत नहीं होती। क्या आप ये दलील दे रहे हैं कि यौम क़यामत पर हम पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि हम बोल सकते हैं, और खौफ का बोलने के नताइज उतने संगीन नहीं हैं जितने के मुस्लिम दुनिया में हैं? अब भाई, जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे फौरन गजा के एक खूबसूरत शहीद की याद आ गई। उनका नाम भाई अहमद अबू रोस है, और अपनी शहादत से पहले उन्होंने एक वीडियो, एक पैगाम जारी किया, और मेरा ख्याल है कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए था, खास तौर पर मगरिब में रहने वालों के लिए जो वाकई आसाइशों में डूबे हुए हैं। और उन्होंने कहा, आप 8 से 3 के जाल के मुजरिम हैं। और 8 से 3 का जाल क्या है? वो सूरह तौबा की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां ये कहा गया है, कह दो, अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे शरीके हयात, तुम्हारा माल, तुम्हारा कबीला, ये 8 चीजें, अगर ये सब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अजीज हैं, तो फिर इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। यानी इन सब चीजों का क्या फायदा जिनके पीछे तुम दौड़ रहे हो? तुम तरक्की के लिए, दूसरों की नजरों में आने के लिए, इस बॉस या इस हाकिम की खुशनुदी हासिल करने के लिए और इस कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हो, और आखिर में तुम्हारे हाथ क्या आएगा? ये सब कुछ। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए या बतौर मुसलमान कामयाबी से गुरेज करना चाहिए, बल्कि इसके बरक्स एक मजबूत मुसलमान कमजोर मुसलमान से बेहतर है ना? लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, खास तौर पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में रहता है, वो ये है कि बहुत से मुसलमान ताकतवर ओहदों पर हैं, हत्ता कि ऐसी जगहों पर भी जैसे पैलेंटियर, गूगल, मेटा, और फिर भी वो नस्ल कशी के बारे में कुछ नहीं कहते। वो अपने साथियों, अपने बॉसेस और सियोनी स्टेट्स को से डरते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा अगर हम थोड़ा सा और आगे ना बढ़ें और थोड़ी सी कुर्बानी ना दें इन 8 में से 3 की खिदमत में। मैं रूहानी तौर पर इसके नताइज के बारे में सोचकर कांप जाता हूँ, और ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि इस दुनिया में हम अपनी उम्मत की तबाही और इस होलनाक दौर को देख रहे हैं जिसमें है, क्योंकि कोई भी अपने इख्तियार और मराद पर से अपनी गिरफ्त छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी कुछ कुर्बान करना नहीं चाहता। बरतानिया में एक शानदार भाई हैं, शेख अली हमूदा, जिन्होंने एक बात कही जो वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। उन्होंने कहा कि अगर आज कोई शेख या आलिम गजा के मामले पे खामोश है तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको मुस्तकबिल में उनसे इस्लाम नहीं लेना चाहिए, आइंदा कभी भी। मेरा मतलब है ये एक बहुत ही मजबूत बयान है, जैसे कि ये इतना बड़ा मसला है कि इस पर खामोश रहना नाकाबिले तसव्वुर है, लेकिन एक आलिम जो इस पर खामोश है, इससे वाकई बचना चाहिए। मेरा मतलब है, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक करते हैं? मुझे तो ये बिल्कुल भी मुतनाज़िया नहीं लगता, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो आम फहम बात है। इस्लाम, ये ऐसा मामला नहीं होना चाहिए।
जिसे बहस के लिए पेश किया जाए, क्योंकि आखिरकार उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिस्म करार दिया है, और अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में है तो हम सबको तकलीफ में होना चाहिए। लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा है, इससे भी बढ़ के। ये सिर्फ जिस्म के एक हिस्से के दर्द की बात नहीं है, ये तो पूरा जिस्म चल रहा है। और हमारे उलमा फर्नीचर की तरतीब बदल रहे हैं या टाइटैनिक के वायलिन बजाने वालों की तरह हैं। वो बात कर रहे हैं ऐसे बेतरतीब मौजुआत पर जिनका असल सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि हमारी कश्ती डूब रही है। और अब यहूदी और ईसाई मुफक्करीन किताबें शाये कर रहे हैं, गजा के बाद यहूदियत, गजा के बाद ईसाइयत। हम मासूमियत के नुकसान से कैसे निपटें? इस किस्म की, आप जानते हैं, नेक नियति पर मबनी लेकिन कुछ हद तक खुद पसंदाना तहरीरें। लेकिन मैं काफी उलमा को ये कहते नहीं देख रहा कि गजा ने हमें क्या सिखाया। ये चार, हम उसके बाद क्या करने वाले हैं? कवानीन पर मबनी निज़ाम का ये इन्हिदाम, हम मुसलमान इस पूरी दुनिया में क़यादत के इस खला को कैसे पुर कर रहे हैं? वो इस्लाहियत की पुकार लगा रहे हैं, वो इंसानियत की पुकार लगा रहे हैं। दुनिया एक नवी नमूने, एक मुख्तलिफ रास्ते की तलाश में है और मुसलमानों को इसमें सबसे आगे होना चाहिए था। अब है क्या हुआ? वो दोबारा रस्म रिवाज, सकाफत, ममनुआत और खौफ की तरफ लौट रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इब्तदाई दौर में इस्लाम की दावत थी, जब लोग अपने आबा व अजदाद के इतने पाबंद थे, या उस वक्त के रस्म रिवाज या उस दौर की सकाफत की तरफ कि उन्होंने दावत को देखा और उसकी नाफरमानी की, वो उससे भाग गए। और मैं ये सोचकर काम जाता हूँ कि कहीं हम भी इस मुमकिना कुफ्र व मुनाफिकत के जाल में ना फंस जाएं। और देखे, मैं ख्वाबों को इल्म का जरिया करार देने में मुहतात हूँ, लेकिन ये ख्वाब जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये गजा के दिल से इंसानों के पैदा करदा कहत के बीचों बीच 2 दिन पहले आया था। किसी ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा नाराज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर बगैर ज़ैन के सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख था। लोग कह रहे थे, या रसूलल्लाह नाराज है, जवाब नहीं दे रहे थे, ना ही बात कर रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार रहे, बराए करम या रसूलल्लाह, क्या आप हमसे नाराज हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और देखा कि वो गजा का एक शख्स है। फरमाया, जाओ, तुम पर बरकत हो और तुम शहीद और हमीद हो। यानी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं उनसे नाराज हूँ वो तमाशाई लोग, वो लोग जिन्होंने खड़े होके तुम्हें ज़िबा होते देखा और कुछ ना किया। और फिर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब जानते हैं, एक जलजला खेज आयत पढ़ी, फरमाया, जो इससे मुंह मोड़ेगा अल्लाह उसे दूसरी कौम से बदल देगा जो तुम्हारी तरह नहीं होगी। तो हमें सबको काम जाना चाहिए और अपने लिए डरना चाहिए कि कहीं हम उन लोगों में से ना हो जिन्हें बदल दिया जाएगा। हमें कैसे यकीन है कि हम कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर उठाकर खड़े हो सकेंगे? मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतने कुछ होने के बाद भी अपने लिए कैसे बहाने बना लेते हैं। इतने खून के दरिया के बाद भी वो फिर कहते हैं, अच्छा खैर, कानूनी तौर पर तो मुझे कुछ कहने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको क्या पता मैं बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रहा हूँ। ए मुसलमानों का गुस्से से भरा हुजूम, तुम कितने जाहिल हो, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मैं तो 4D शतरंज खेल रहा हूँ, यहाँ मैं बड़ी गेम खेल रहा हूँ। मेरी सोच तुम्हारी कमजोर अक्लों से कहीं ज्यादा मावराई है। और ये जो तकब्बुर भरे बहाने उल्मा बनाते हैं, ये कितने सख्त दिल हैं। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आता। ये इस्लाम नहीं है, ये नबवी तरीका नहीं है। सूफिया, आप अपनी लिखी हुई आयत का बड़ा हिस्सा महफूज रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सुनने और देखने वालों से कहना चाहूंगा कि आपके सब स्टेक पर जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह आपका तहरीरी काम वाकई गैर मामूली है। देखिए, आप आज के सूफियों की बात करते हैं और यहाँ एक इक्तिबास है, आप बयान करते हैं कि वो इसकी तरवीज करते हैं। वो एक गुमराह कुन रियासती सरपरस्ती ने परवान चढ़ने वाले इस्लाम की तरवीज के जिम्मेदार हैं, जिसे मदखली सूफियत की शक्ल में पेश किया जाता है। आप मदखली सूफियत से क्या मुराद लेते हैं? अच्छा, तो शायद मैं आपके सुनने वालों को अपने काम का कुछ पस मंजर दे दूं। दर हकीकत मैंने अपनी मास्टर्स थीसिस इस मौजू पर की थी कि सूफियत को अच्छे इस्लाम, हल्के इस्लाम और नरम मिजाज इस्लाम के तौर पर कैसे तैयार किया जाता है, और मैंने मुख्तलिफ मिसालें इस्तेमाल की ताकि ये वाजे कर सकूं कि ये सब कैसे हुआ। मैंने मौलाना रूमी की मिसाल दी, और हालांकि एक वक्त था जब वो मंगोलों से लड़े थे, उन्हें इस तरह पेश किया गया है। आप जानते हैं, वो वाकई अफगानिस्तान से ऑनलाइन रूमी मसाला बेचते हैं।
और इस अजनबी शख्सियत को, उस दरवेश को जो नाइंसाफी के सामने खामोश और मुती है, पेश किया जाता है, हालांकि ये हकीकत नहीं है। वो एक संजीदा फकीर थे और हकीकत में उन्होंने मंगोलों के खिलाफ अंदरूनी तौर पर भी जद्दोजहद की थी। तो इब्तिदा से ही एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है कि इस्लाम और इसके मुख्तलिफ शोबों को दर्जा बंदी किया जाए, और ये सबसे पहले मुस्तशरिकीन ने किया था, जो इल्म को बिल्कुल चिड़ियाघर की तरह या इंसाइक्लोपीडिया के अंदाज में देखना चाहते थे। जैसे कि देखें, इस अजनबी और वहशी रिवायत की दुनिया में यहाँ दरवेश हैं, वो ये करते हैं, और यहाँ कुछ लोग हैं जो वो करते हैं। ये फारसी हैं, ये सलफी हैं, और आज भी हम ये सब देखते हैं। इस्लामिस्ट, इखवानी, शिया। हमने खुद भी बतौर मुसलमान उन जुमरों को अपने अंदर जज्ब कर लिया है और उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि लफ्ज़ सेल्फी भी इससे पहले मौजूद नहीं था, जब तक कि मिसीनियों ने खुद इसे इजाद नहीं किया। तो हमें अंदाजा नहीं है कि हमारी अपनी ज़बान, हत्ता कि हमारे बारे में भी, किस कदर मुस्तशरिकीन के जरिए तश्कील दी गई है। तो ये सब कुछ इसी पस मंज़र का हिस्सा है। और मेरी तहकीक से ये सामने आया है कि एक वक्त था जब वॉर ऑन टेरर जैसी ज़बान सिर्फ नाम नेहाद सूफियों के लिए मखसूस थी। और मैं उन्हें सूफी कहता हूँ, लेकिन वो खुद को आम मुसलमान समझते थे। वो अपने आप को यूं देखते थे कि उनका एक अकीदे का मकतबा है, एक फ़िक़्ह का मकतबा है, और एक तज़किया या एहसान का मकतबा है। तो सूफी सिलसिलों के बारे में ये सब हंगामा, असल में ये सब कुछ ज़्यादा रवां, खुला और हमागीर था। नौबादियाती दौर से पहले अगर कोई खुद को सूफी कहता था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये उनके रोजमर्रा की अमली जिंदगी में रच बस गया था। तो दिलचस्प बात यह है कि एक जमाने में लफ्ज दरवेश बरतानवी और इतालवी नौआबादियाती हुक्मरानों के दिल में खौफ पैदा कर देता था, क्योंकि सोमालिया में शेख मोहम्मद अब्दुल हसन, जो यूरोपी नौआबादियात के खिलाफ सोमाली मुजाहमत के रहनुमा थे, उन्हें दरवेश कहा जाता था, क्योंकि वो एक नाम नेहाद सूफी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। और इसी तरह अब्दुल कादिर अल जज़ायरी जैसे लोग, और मेरा ख्याल है कि आप इस मौजू पर शेख शाजी से पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इस किस्म की क़यादत के रहनुमा नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुजाहमत कम अज़ कम 19वीं सदी में ज़्यादातर नाम नेहाद सूफ़ी उलमा ही थे। हत्ता के सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने यरूशलेम को आज़ाद कराया, वो भी अपनी फ़ौजी मुहिमात से पहले अपनी ज़ाविया में जिक्र किया करते थे, सलीबियों का मुकाबला करने से पहले। तो उसमें एक बहुत ही ज़रखेज़ तारीख है जो बदकिस्मती से नौआबादियाती सोच की वजह से हमें हकीकत देखने से रोकती है, इस्लामी तारीख को अपने ही नुक्ता नजर से देखने में। ये लोग कौन है जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं? आइए बात करते हैं, यानी एहतराम के साथ, लेकिन कुछ नाम लेते हैं उन उलमा के जो मुस्लिम उम्मत को सुस्त कर रहे हैं। हाँ, आपने मुझसे मदखली अज़म के बारे में पूछा था, ठीक है। मैंने इस इस्तिलाह को ख़ास तौर पर बयान नहीं किया था, और मेरा ख्याल है कि इस फ़िरके या मकतब फ़िक्र के बानी रबी अल मदखली हाल ही में इंतकाल कर गए हैं। वो एक सेल्फी शख्सियत थे जिन्होंने हुक्मरां और रियासत की बगैर किसी शर्त के इताअत का मुतालबा किया, चाहे कुछ भी हो, जो मेरे ख्याल में एक इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ है। सुन्नी उलमा, शिया उलमा, कोई भी इसका जवाब पेश नहीं कर सकता, खा कोई भी इंतबा हो। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि हाल ही में सऊदी अरब में एक आलिम था, उसने कहा कि अगर हुक्मरान टीवी पर सबके सामने जिना का इर्तिकाब करे तब भी हमें उस हाकिम की इताअत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कि वो कितनी दूर जाने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुदाखलत सिर्फ सुनूफी आलमा के लिए मखसूस नहीं है। हम ये चीज मगरिब में न्यू ट्रेडिशनल और सूफी उलमा में भी बहुत वाज़ेह तौर पर देखते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए गुजारा, ये कहते हुए कि सुनूफियत बिदत है और ये है वो है, और फिर वो दूसरे को भी बिदती कहते हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे को देखें तो वो बहुत ज्यादा एक जैसे नजर आते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे इस्लाम की वकालत कर रहे थे जो ताकत को नजरअंदाज करता है, एक ऐसा इस्लाम जिस हकीकत को नहीं देखता था। हम सब के लिए सबसे बड़ा खतरा वो सख्त रेगुलेटेड नेशन स्टेट है जो इन जुमरों को पैदा करने में लगा हुआ था, जिन्हें वो कंट्रोल कर सके। तो दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया मसला नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर हम वापस जाएं यहाँ तक कि 5वीं और 4थी सदी कबले मसीह में, खुद अफलातून के दौर में, तो आप देखेंगे कि हमेशा दरबारी दानिश्वर मौजूद रहे हैं।
हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो इस्लामी अखलाकियात को खोखला करने और इसकी बयानबाजी को धोकर पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर इस्लाम ये होगा कि ये बात आज के दौर में बेवक्त मालूम होती है, लेकिन आज हम इसे बखूबी देख सकते हैं। और अफलातून ने उन्हें सुफिस्ट कहा था, ठीक है। उसने कहा कि वो बराह रास्त जालिम हुक्मरानों की खिदमत करते हैं और वो नेकी और चलाक गुफ्तगू के पर्दे में ताकत के ढांचों को जायज करार देने में मदद देते हैं। तो अफलातून उन सोफिस्टों पर तनकीद करता है कि वो ये सिखाते हैं कि इंसाफ ताकतवर के फायदे में है, और यूं कह लें कि वो अपनी दलीलें सबसे ज्यादा कीमत देने वाले को बेचते हैं। जब आप उलमा को सुनते हैं तो देखें उनकी बातों में कोई गलत बात नहीं होती, ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये एक तरह से इस्लाम को जबानी चालबाजी के जरिए साफ सुथरा और सफेद करने का तरीका है। यानी नाइंसाफी को हकीकत पसंदी कहना और गुलामी और कमजोरी को हिकमत, फजीलत या अमन का नाम देना। तो फिर क्या होता है जब ये हमारे इल्मी हल्के का मामूल बन जाए? हमारा इल्मी तबका, यानी वो लोग जो नबवी पैगाम के अमीन समझे जाते हैं, वो आमरीत के तर्जुमान बनने के खतरे से दो चार हो जाते हैं। वो सच्चाई को फजीलत और जाती फायदे के हुसूल के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो अकल को जुल्म की खिदमत में लगा देने का ये जादू है, और हम ये सब कुछ मगरिब में भी देखते हैं, जहां मिसाल के तौर पर मैं हमजा यूसुफ जैसे किसी शख्स के बारे में सोच सकता हूं जो बहुत फसीह हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद भी की है। लेकिन असल में जब वो इस तरह की बातें कहते हैं जैसे कि खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करो, या आप जानते हैं अगर आप बस खामोश बैठ जाएं और अपने जुल्म या तकलीफ के खिलाफ कुछ ना करें, तो शायद दुनिया आपको इंसान समझने लगे और शायद वो आपको इन पागल वहशी इंतहा पसंदों के तौर पर ना देखें। लेकिन मेरे लिए इसका नतीजा ये निकलता है कि ये मुसलमानों की अक्सरियत को बस के नीचे फेंक देना है, क्योंकि ये ताकतवरों की मंतिक को अपील करता है। ये कह रहा है कि कोई भी जो मुजाहमत करे, चाहे कुछ भी हो, वो गैर मामूली है, वो गलत है। तो ये फौरन रियासत और रियासती सरपरस्ती में चलने वाली ताकतों के लिए ईंधन बन जाता है, क्योंकि वो ये सोचकर ऐसा करते हैं कि वो रिवायत की हुर्मत की हिफाजत कर रहे हैं और इसे किसी किस्म के बागी और इंतहा पसंद ख्यालात से बचा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को उल्टा करके कहूंगा कि दरअसल यही ख्यालात बागी और इंतहा पसंद हैं। जब आप रियासती सिक्योरिटी इदारों को खुली छूट, बेलगाम ताकत दे देते हैं कि वो जो चाहें करें, मासूमों पर हर तरह के जुर्म ढाएं और फिर उसे यूं ही रहने दें, तो फिर ये क्या है? यही असल में बिदअत है, यही हमारी रिवायत से इन्हिराफ है और यही इस्लाम से गद्दारी है। जब आप किसी जालिम को अंधा तहफ्फुज और मजहबी जवाज फराहम कर रहे हैं जालिम को, तो ये दीन नहीं है, ये मुगालताबाजी है, या आप इसे बेबसी या रुसवाई का मजहब कह सकते हैं। शेख बिन बैर, शेख हमजा यूसुफ, उनका मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है और इस वक्त यूएई की हुकूमत शायद सबसे ज्यादा नापसंदीदा हुकूमतों में से एक है। वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर हमले करते हैं और बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल करते हैं, और किसी भी मुआशरे में इस्लाम की वापसी को शहरी इक़दामात के जरिए रोक देते हैं। वो लीबिया और सूडान में जालिमों को फंड फराहम करते हैं। ये उलमा मुस्लिम दुनिया के फिरौनी हुक्मरानों के इतने करीब कैसे रहते हैं और फिर भी बच निकलते हैं? ये वाकई दौरे हाजिर की निशानी है ना, कि ये सब कुछ होते हुए देखना पड़ रहा है। ये मुझे इस आयत की याद दिलाता है, अल्लज़ीना क़ालू लिअख़वानिहिम वक़ादू लो अताऊन मा क़ुतिलू, यानी वो लोग जो अपने भाइयों से कहते हैं और खुद बैठे रहते हैं। उन्होंने बस तमाशा देखा जब वो लोग, आप जानते हैं, जुल्म के ज़ेरे साया थे और कहा अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो कत्ल ना किए जाते। तो हकीकत में ये इस्लामी रिवायत का इस तरह गलत इस्तेमाल है। फिर से, जैसा कि मैंने पहले कहा, अफलातून के मुताबिक ये ताकतवरों की खिदमत है जो रियासत की खिदमत में है, और मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो कुछ किया है वो अकेले ही किया है। एक बार एक आलिम मुझसे शुमाली अमेरिका में मुसलमानों के सबसे बड़े कन्वेंशंस में से एक पर मिले और उन्होंने कहा, तुम्हें और तुम्हारी मुत्तहिदा अरब इमारात पर तवज्जो को क्या मसला है? और ये शख्स लीबियाई है, वो लीबिया की नस्ल से है। यकीन नहीं आ रहा, ये सवाल किया, मुत्तहिदा अरब इमारात क्यों?
तुम इस पर इतने क्यों मरकूज हो? और मैंने कहा कि देखो, मुत्तहिदा अरब इमारात अकेला ही ये सब कर रहा है, जाहिरी तौर पर, और दावा भी करते हैं जैसे कि वो इस पर फख्र महसूस करते हैं कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसियों में अमेरिका से भी ज्यादा सख्त हैं, और खुद इजराइल से भी। उन्होंने तो उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है जो सियासत में किसी भी मुसलमान को बदनाम और दूसरा बनाने के इस तसव्वुर के बानी थे। कोई भी मुसलमान जो नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत करे, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, उसे फौरन बुरा और खत्म किए जाने के काबिल करार दे दिया जाता है, यानी एक इस्लामिस्ट, एक दहशतगर्द, और ये सब मुबहम अल्फाज जो हमारी रिवायत से नहीं आए, ये कहीं और से आए हैं। तो असल में जो वो कर रहे हैं, जाहिरी तौर पर वो ये समझते हैं कि वो इस्लामी रिवायत की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो इसे अंदर से कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे इन इंतहा पसंद, अब जानते हैं, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दों के लिए चारा बना रहे हैं बुनियादी तौर पर। और इस तरह ये आम मुसलमान को बहुत गैर महफूज छोड़ देता है, क्योंकि ये उन पर हमला आवरों को छोड़ देता है और लोगों को बस के नीचे फेंक देता है, जैसे गजा के लोग, यमन के लोग। उन्हें बस के नीचे इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि उनके पास उलमा की हिमायत नहीं होती। ये गालियां देता है जो वो शक की निगाह से कर रहे हैं, और इस तरह उनके पास ज्यादा, एक तरह से ज्यादा उन्हें नफरत है। क्या लफ्ज है, उन्हें इस्लाम पसंदों से इससे ज्यादा नफरत है जितनी कि उन बैरूनी ताकतों से है जो उम्मत के खिलाफ हैं, जैसे सियोनी और मगरिबी ताकतें जो हकीकत में मासूम लोगों के खिलाफ फहिश किस्म की फौजी ताकत और असलहा इस्तेमाल कर रही हैं। डॉक्टर फरा, कमेंट सेक्शन में लोग होंगे जो ये दलील देंगे कि इस गुफ्तगू में अदब की कमी है। आप जानते हैं, हमें उलमा को इतने खुलेआम नहीं पुकारना चाहिए। आप जानते हैं, शेख हमजा यूसुफ को यूएई के करीब रहने दें। हमें नहीं मालूम कि वो बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रहे हैं। अगर हम उन्हें पुकारें और कहें कि आप गजा पर खामोश रहे हैं, आपने जालिमों को उनके जुल्म के साथ रहने दिया है, जो कि उन्होंने किया है, इसमें मेरे जहन में कोई शक नहीं, उन्होंने किया है। आप इस्लामी इल्मियत को कमजोर कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दीन को तोड़ देते हैं और आप दीन को खत्म होने देते हैं। आम लोगों के शऊर से और इस्लाम की ऐसी अहम शख्सियात की बात की जाए तो यहाँ कुछ तनासुब है। ठीक है, मैं कभी कभी मजाक करना पसंद करता हूँ कि मैं अपने आप को इस किस्म के रिवायत पसंद उलमा की फॉरेस्ट गम शख्सियत की तरह देखता हूँ। किसी भी वजह से अल्लाह ने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया है जहां मैंने इनमें से कुछ लोगों से दोस्ती की है। इनमें से बहुत से मेरे असातिज़ा, बुजुर्ग और रहनुमा रहे हैं। शेख हमजा खुद भी माधी में मुझे पढ़ा चुके हैं। तो मेरा किसी से जाती कोई मसला नहीं है, यह हमारी उम्मत की हालत के बारे में है। इसकी वजह गैरत है, इस्लाम की हुर्मत और मुस्लिम इल्मी रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है, कुरान और सुन्नत के ही। और जैसा कि मैंने कहा, घर में आग लगी हुई है, और हम, क्योंकि हम अपने उलमा से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे ज्यादा तवक्को रखते हैं। हम उनसे मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि वो इस वक्त के तकाज़ों पर पूरा उतरें, और वो कह सकते हैं जैसे कि ओ ये आखिरी जमाना है, ये फितना है। अब क्यों बोलना चाहिए? आप जानते हैं, आपको बस घर में रहना चाहिए, छुप कर रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अक्लमंदी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास एक छोटी सी भी, तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा पौधा भी हो और कयामत आ जाए तो उसे लगा दो। हमारी रिवायत में कहीं नहीं लिखा कि जब तुम कुछ गलत देखो तो बहरे, गूंगे और अंधे बन जाओ। सच को ताकतवर लोगों के सामने कहने और वही को जिंदा रखने के मामले में कोई वक्ती या मशरूत पाबंदी नहीं है, क्योंकि इससे ये खतरा पैदा हो जाता है कि इस्लाम में हमारे यहाँ कोई बाकायदा मजहबी तबका नहीं है। हम ईसाइयों, यहूदियों की तरह नहीं है। हमारे यहाँ रब्बानी तबका नहीं है। हमारे तमाम उल्मा माशाल्लाह वारिस है ना, उन्हें अंबिया के वारिस होना चाहिए, और ये एक बहुत बुलंद और अजीम मनसब है, एक आला मकाम है। तो ये ज्यादातर मोहब्बत और जज्बे से है, क़यादत के आला तरीन उसूलों को देखकर। और फिर ये बहुत बड़ा फर्क और तजाद देखकर यही चीज हमें बोलने पर मजबूर करती है। मुझे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं एक नर्ड हूँ, मुझे अपनी इल्मी तहकीक करना पसंद है, अपनी रिसर्च करना पसंद है, मुझे अपने तालीमी किताब पर काम करना चाहिए था।
लेकिन गजा की औरतों, बच्चों और बापों की चीखें और पुकार जो वाकई सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि फतवे, फोरम्स, बैनुल मज़ाहिब कौंसलें और आप जानते हैं नेकी और अमन वगैरह, जिन्होंने इस जुल्म को 2 साल से ज्यादा जारी रखने के लिए एक तरह की मजहबी और सियासी मुहर लगा दी। शेख बिन बेर बहुत करीब है मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत के, जिनके बारे में हमने साबित किया है कि वो दिन रात इस्लाम और मुस्लिम उम्मा के खिलाफ काम करते हैं। और साथ ही साथ यूएई इसराइल के भी बहुत करीब है। मेरा मतलब है, हम शायद ये कह सकते हैं कि ये वाकई अरब सियोनी है। यानी अगर अरब सियोनी हुकूमत की कोई मिसाल है तो वो यूएई की हुकूमत है, सऊदी अरब और उर्दन के साथ, और ये सब हुकूमतें क्या इसराइल के मफाद में है कि वो इस्लाम का ये कमजोर वर्जन फरोग दे? जी हाँ, बिल्कुल वाज़ेह है। तो कोई भी जो 20वीं सदी की तारीख पढ़े वो देख सकता है कि यहाँ तक के वॉर ऑन टेरर भी घड़ी गई थी। ये नेतन्याहू और दीगर इस्राएली सियासतदानों और हुकाम का आइडिया था। कोई भी आसानी से अ क्लीन ब्रेक, अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिंग द रेल्म एंड प्रोटेक्टिंग इजराइल देख सकता है, और ये 1996 में किया गया था। ये बुनियादी तौर पर 5 साल में 7 मुमालिक को निशाना बनाने और लोगों के जहनों में नाम नेहाद इस्लामी दहशतगर्दी के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना था। फिर मुस्लिम रहनुमाओं और मुस्लिम रियासतों के बजाय उसे पहचानने और हकीकत को समझने के बजाय वो दरअसल उसकी मदद और मुआवनत कर रहे हैं, और हकीकत में उसकी माली मुआवनत भी कर रहे हैं। यूएई इस क्लीन ब्रेक मंसूबे की सरगर्मी से माली मुआवनत कर रहा है, जो बज़ाहिर काफी हद तक जारी है। 5 साल में 7 ममालिक को निशाना बनाने का मंसूबा, सूडान, सोमालिया, यमन, लीबिया, शाम, लिबनान और अब गजा, फिलिस्तीन। जाहिर है, तो यही बात है जो मुझे हैरान करती है, और यही बात है जो मैं नहीं समझता भाई मोहम्मद, कि आखिर क्यों उस वाज़े तौर पर शैतानी मंसूबे को ले लें जिसका मकसद मुस्लिम ममालिक को तोड़ना, उन्हें कमजोर करना, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना और किसी भी किस्म के अखलाकी और उसूली ज़ाब्ते को मिटाना है। इस्लाम के अंदर भी बस उसे हिजाब, अबाया, मसाजिद और इस्लामी लेक्चर सुनने तक महदूद कर दिया जाए, और ये इस्लाम को बदलने की एक तरह की शैतानी कोशिश है। और मुझे अच्छे प्रोफेसर डॉक्टर जॉनथन ब्राउन याद हैं, उन्होंने एक बार ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, वो कहाँ गए वो मुतालबे कि मुस्लिम मार्टिन लूथर कहाँ हैं, अब हम वो बातें नहीं सुन के। तो मैंने उन्हें जवाब में ट्वीट किया कि उसकी जरूरत ही नहीं थी, ना अब जरूरत है, क्योंकि इस्लाम की ये इस्लाह पहले ही रियासती सतह पर हो चुकी है। और लोग रहनुमा जैसे कि MV-वेड और MVS ये सब खुलेआम कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं, वो उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा इस्लाम, एक खामोश रहने वाला इस्लाम, एक ऐसा इस्लाम जो नाइंसाफी के सामने खामोश रहे, एक ऐसा इस्लाम जो हर तरह के जबर के आगे झुक जाए। और हैरान कुन बात यह है कि उल्मा इसमें मदद और मुआवनत कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो कहें देखो चीजों को जैसा है वैसा ही देखो। इमाम अली ने यह कहा था, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं चीजों को जैसा है वैसा ही देख सकूं। ये एक नेमत है कि इंसान हकीकत को देख सके और उसे जैसा है वैसा ही बयान कर सके। ये कोई इंतहा पसंदी नहीं ना, ये तो असल तारीख है। कोई भी विकिपीडिया पर जाकर ये मंसूबे देख सकता है। दर हकीकत एक और चीज भी है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। ये एक तरह से इस साइकोस्पिकल 2.0 जैसा है। आप जानते हैं, सीक्वल हमेशा असल से बदतर होता है। इसे योनन प्लान कहा जाता है। और एक बार फिर यहाँ इजरायली हक्काम ने इसी की दहाई में इजराइल और ग्रेटर इजराइल के इलाके को महफूज बनाने के अपने मंसूबे में बहुत ज्यादा वजाहत और तफसील से बात की थी। और ये कासी, और वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि मशरिक वस्ती नस्ली और फिरका वाराना बुनियादों पर छोटे छोटे रियासतों या जागीरों में तकसीम हो जाए। मशरिक वस्ता की हालत भी है, अरब दुनिया की हालत देखें, यही कुछ हो रहा है। और अब वाकई वक्त आ गया है हम जाग जाएं और अपनी कहानी और अपना इस्लाम उन लोगों के हाथों से वापस छीन ले जो इसे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फराह, मैंने मुसलमानों से मुलाकात की है। हाल ही में एक दाई मेरे पास आया और चाहता था कि वो मेरे प्रोग्राम में शामिल हो। और आप जानते हैं, वो बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत काम करता है। और मैंने उससे पूछा, अच्छा पिछले
2 साल, तकरीबन 2 साल हो गए तुमने कभी गजा का जिक्र तक नहीं किया। तुम बहुत सा मवाद तैयार करते हो, बहुत सी तहरीरें लिखते हो, तुम बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल पर बात करते हो। तो वो ऐसा शख्स नहीं है जो मसाइल से लाताल्लुक हो, लेकिन तुमने एक बार भी गजा के बारे में बात नहीं की। और इसका जवाब यह था कि आप जानते हैं, क्या हमें अल्लाह के बारे में बात करनी चाहिए या गजा के बारे में, जो कि जाहिर है एक मज़ाक़खेज़ जवाब था। लेकिन इस किस्म का यकीन है कि आप गजा को सबसे अहम क्यों पेश कर रहे हैं। हमारे दौर का मसला, जैसे आप जानते हैं, मुझे लगता है उसने कहा, अच्छा तुम सूडान की बात क्यों नहीं करते, और आप उइगुरों के बारे में बात क्यों नहीं करते, और आप जानते हैं कि गजा इतना अहम क्यों है, पसंद क्यों, अब गजा को मरकज क्यों बनाना है। मेरा ख्याल है सवाल यह है कि क्या ये इस मुस्लिम उम्मत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले ये तमाम मजालिम आपस में जुड़े हुए हैं। गजा कोई अलग थलग मामला नहीं है। गजा शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाला और हिला देने वाला लाइव स्ट्रीम है, हॉलोकास्ट। ये अपने शिद्दत में है कि हमने वाकई लाइव स्ट्रीम्स देखने के काबिल हुए हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह चाहता है कि हम ये देखें, हर चीज अल्लाह की तरफ से है। वो अगर हम गजा सूडान को अलग करें और कहें कि चलो किसी और चीज पर बात करते हैं, मेरे नजदीक ये दुनिया को टुकड़ों में देखने वाली बिखरी हुई नजर है। हकीकत में अल्लाह हमें अपने महबूबों, अपने मजलूमों यानी इन मासूमों की तरफ बुला रहा है, जिनके बारे में सच पूछे तो एक माँ की फरियाद सुनना इससे ज्यादा इस्लामी और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि तुम कहाँ हो ए उम्मत इस्लाम, तुम कहाँ हो। तो इसको नजरअंदाज करना मेरे ख्याल में हमारी खूबसूरत इस्लामी रिवायत की बहुत बड़ी तौहीन है, और ये गैर फिक्री भी है, क्योंकि जब आप इस सारी तकलीफ से मुंह मोड़ लेते हैं, और ये सब ईमान वाले लोग हैं, ये सब कुरान के हाफिज है। दुनिया में सबसे ज्यादा फीकस कुरान के हाफिज और गजा में हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वहीं दफन है। इसे गजा तो हाशिम कहा जाता है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक आबाई नबवी पुकार है, सिर्फ उम्मत के लिए नहीं। गजा सिर्फ तबाही, खून, गम, कहत और भूख का नाम नहीं है। गजा एक उस्ताद भी बन सकता है। गजा पुकार रहा है हमें जगाने के लिए। गजा एक मौका है। ये इस बात की निशानी है कि हम इंसानियत के तौर पर अपनी राह खो चुके हैं, और हमें वाकई अपनी सिम दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम सब नाम निहाद नौआबादियाती दौर के बाद अपनी अपनी छोटी खुशहाल रियासतों और अपनी सख्ती से मुनज़्ज़म नीम मुर्दा जिंदगियों में गुम हो गए, फिलिस्तीन ने इस फरेब में हिस्सा नहीं लिया। उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया। झूठ और फरेब के इस मकरुआ खेल में गई। ये हमेशा एक बेदारी की सदा रहा है। तो जो लोग गजा से मुंह मोड़ते हैं, वो सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, और जब आप सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तो आपकी इंसानियत, आपका ईमान खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि आखिर अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? ताकि हमें जमीन पर अल्लाह के खलीफा बने। सिर्फ ये नहीं कि हम इधर उधर घूमें, फतवे दें, कॉन्फ्रेंसों में जाएं और अपने मुसलमान होने पर खुश हों। ये एक इस्तिखलास है। हत्ता के फरिश्तों ने भी अल्लाह से पूछा कि आप ऐसा इंसान क्यों पैदा कर रहे हैं जो इतना फितना, फसाद और खून रेजी करेगा। और अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो इसमें मेरे ख्याल में हमारे लिए एक दावत है कि हम कुछ इलाही सिफात को अपने अंदर पैदा करें। हाँ, अल्लाह लतीफ है। हाँ, अल्लाह रहीम है। हाँ, अल्लाह मेहरबान, शफीक, नरम दिल और मोहब्बत करने वाला है। लेकिन अल्लाह इंतकाम लेने वाला भी है। अल्लाह जब्बार भी है। अल्लाह मालिकुल मुल्क है। सारी बादशाही इसी के लिए है। और अगर मैं अपने पूरे मंसूबे को कि मैं इस्लाम, नौ आबादियात, ताकत और नाइंसाफी के बारे में क्यों बात करता हूँ खलासा करूं, तो वो सिर्फ इसी एक ख्याल से निकलता है। वो वालिद जो कह रहा था, लशफ्ता एत या ज़लमा, तुम क्यों रो रहे हो? जब किसी ने बच्चा खो दिया तो वो वायरल हो गया। वो कह रहा था, तुम क्यों रो रहे? वो शरीब है, वो शहीद है। गजा के लोगों के ईमान ने मुझे ये बात याद दिलाई, और उसने ये बात बराह रास्त नशरियात में कही जब उसने एक और बेटा खो दिया। कुछ हफ्ते पहले उसने कहा, अल्लाह का अर्श, क्या इसराइल इससे बुलंद है? क्या अमेरिका और उनके बम और यूएई और उनके एटीएम जो इस मौत की मुहिम को फंड कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह से बुलंद है? फिर नहीं, वो अल्लाह के अर्श से बुलंद नहीं है। और यही हम कहते हैं जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं कि ना कोई माबूद है, ना कोई दुनियावी ताकत, ना कोई बम,
ना कोई ड्रोन, ना F-16, ना M-16, ना कोई टैंक जो अल्लाह से बड़ा हो या उससे ज्यादा खौफ या इबादत के लायक हो। और अल्लाह ही बदला लेने वाला है और वो इंशाल्लाह उन लोगों का बदला लेगा। और मैं कांप जाता हूँ ये सोचकर कि गजा का ये इंतकाम कैसा होगा, और मेरा ख्याल है कि ये पूरी दुनिया को निगल जाएगा। डॉक्टर फराह, आप एक अमरीकी मुसलमान हैं और इस सल्तनत के दिल में रहते हैं। अमेरिका इस कत्लो गारत, नस्ल कशी और गजा में होलोकॉस्ट में गहराई से मुलव्वस है। मैं आपसे अमरीकी मुसलमानों के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप महसूस करते हैं कि अमरीकी मुसलमान गजा के नतीजे में जाग गए हैं? उन्हें यह एहसास हो गया है कि इस सल्तनत को चैलेंज करने में उन पर एक खास जिम्मेदारी आयद होती है। या वो बेहिसी है जिसका आपने पहले जिक्र किया था? क्या वो ये? दूसरे लफ्जों में कौन सी चीज ज्यादा मजबूत है, बेहिसी या ये आमादगी कि इस मुस्लिम उम्मत की आवाज बने, उस मायूसी की जो उम्मत को गजा में दरपेश है? कौन सी जीत रही है? हाँ, मेरा मतलब है मैं इसका जवाब एक मॉरिस के तौर पर दूंगा, ठीक है? अगर आप मगरबी तहजीब को देखें और खास तौर पर अमरीकी इनकलाब को, तो इसमें अच्छे ख्यालात थे। ये एक वक्त था जब ये इस ख्याल का पाबंद था कि आप जानते हैं जालिमों के खिलाफ बगावत करना खुदा की इताअत है और मगरिब का हतमी मकसद आज़ादी और इंसाफ है और सब बच्चे खुदा के ज़ेरे साया हैं, और ये तसव्वुर कि अच्छा ईसाई बनने के लिए इंसाफ के रास्ते पर चलना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है बदकिस्मती से जो हम अब देख रहे हैं वो इन नज़रियात की नाकामी है। इस्लाम का मंसूबा अभी तहजीबी तौर पर पूरा होना बाकी है। हम तकरीबन पिछले 500 साल से एक जमूद की हालत में हैं। हमने इस किस्म के एहसास कमतरी को जज्ब कर लिया है। हम हमेशा डिफाई पोजीशन में रहते हैं। हम हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ओ नहीं, हम अच्छे हैं। ये फिक्र है, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम लिबरल हैं। हम हमेशा ये तमाशा करते रहते हैं और हमेशा मेज पर अपनी जगह चाहते हैं, लेकिन मेज हमें कबूल ही नहीं करता। असल में वो मेज मौजूद ही दी है। इसलिए अच्छे मुसलमान या अंकल टॉम बनने की कोशिश करना एक हारी हुई जंग है, क्योंकि इस्लाम दरअसल तमाम पिछली नबूवतों का एक मिलाप है। ये बनी इसराइल की कबायली बढ़तेरी और उनकी बालादस्ती को ख़त्म करना चाहता है, और यहूद व नसारा के मंसूबे की इस तकब्बुर को भी, जो अब वाज़ेह तौर पर नाकाम हो चुका है। तो मैं वाकई मगरिबी मुसलमानों से कहता हूँ कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें। ये कहें कि ये खला, ये चीज जिसका आपने दावा किया था, अब वाज़ेह तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इसका नतीजा गुलामी, नौआबादियात, आलमी जंगों और नस्ल कशी की सूरत में निकला। इतना ज्यादा खून खराबा, इतनी ज्यादा नाइंसाफी इस नाम निहाद बरतर यहूदी ईसाई मगरब के नाम पर हुई है। और फिर इसके रद्द अमल में हमारा रवैया लड़ाई, भाग जाना या साकित हो जाना या महज दिखावा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बेहद मालामाल रिवायत और पैगंबराना मिसाल की तरफ वापस रुजू करना चाहिए और ये कबूल करना चाहिए कि शायद इस्लाम के पास ही जवाबात हैं। और मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ है जिस पर हमें फख्र करना चाहिए और इस पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। डरते रहने, माजरत करने और दोबारा इस मॉडल में फिट होने की कोशिश करने के बजाय जिसने हमें पहले ही निकाल दिया है, उसने हमें मुस्तरद कर दिया है। हमने बारहा ये सीखा है कि वो लोग भी जो ये सब कुछ करते हैं, जो इस खाने में फिट होने की कोशिश करते हैं और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, मुसलमान अगर यूं कहा जाए आखिरकार मुंह के बल गिरते हैं। वो फिर भी उन्हें दहशतगर्द कहेंगे, वो फिर भी उन्हें इंतहा पसंद कहेंगे, वो फिर भी उनके पसे मंजर पर शक करेंगे, चाहे वो नस्ली तासुब हो या किसी और किस्म का तासुब। तो फिर क्यों ना एक तरह की ऐसी इंसानियत के लिए एक मौके को दोबारा हासिल किया जाए जो मगरिब और इस्लाम दोनों की बेहतरीन खुसूसियात को यकजा करे। आप इंसाफ को इस्लाम के साथ मिलाने, इकट्ठा करने और जोड़ने की जरूरत की बात करते हैं, और जैसा कि आपने इशारा किया, नौजवान मुसलमान जो रिवायती इस्लामी तालीम के प्रोग्राम में शामिल होते हैं वो बहुत ज्यादा इस खतरे में हैं कि उन्हें बेहिस कर दिया जाएगा। वो इन इदारों में जाते हैं, चाहे वो अल अज़हर हो, मदीना हो या कोई और जगह, और वो ऐसे उलमा के ज़ेर साया तालीम हासिल करते हैं जो उन्हें इस्लाम का ये बेहिस वर्जन पढ़ाते हैं, जो अक्सर, अगरचे हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर औकात में ईमान और रूहानी अमल से इंसाफ को निकाल देता है।
کیا آپ یہ تجویز کریں گے کہ ان اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان مسلمانوں کے لیے واقعی ایک بڑا خطرہ موجود ہے؟ یہ خطرہ کہ وہ اسلام کی ایسی شکل پڑھیں جو روایت سے ہم آہنگ نہ ہو۔ میں کہیں بھی یا کسی کے زیر سایہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں اسلام میں اس طرح کی تنگ نظری نہیں ہے۔ در حقیقت ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے زیادہ خیالات سے آشنا ہو سکیں ہوں تاکہ ہم اس دکھاوے کی پرہیزگاری کے جال میں نہ پھنسیں یا روایت کو جامد کر دینا یا اسے بت بنا دینا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ہر کسی کو اپنی زندگی کی اس مقام کے مطابق خود احتسابی کرنی چاہیے۔ ہر کسی کو اپنے ماحول، اپنی پرورش اور ان خیالات پر نظر ڈالنی چاہیے جو ان کے ذہن اور روح میں راسخ ہو چکے ہیں۔ ان کا ایمان کیسا ہے؟ کیا وہ صحت مند ہے؟ اگر وہ صحت مند نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ان حلقوں میں جانے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی معرفتوں کا شکار ہو جائیں جو کسی کے ایمان اور روحانی تربیت کے لیے غیر صحت مند ہو سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ سب کچھ انسان پر منحصر ہے۔ تو مثال کے طور پر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسلام کی تعلیم کے لیے کسی تعلیمی پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے خود احتسابی کریں۔ انہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بچپن سے ہی انہیں اطاعت کرنے کی عادت ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حالت میں والدین کی اطاعت کرو، پرنسپل کی اطاعت کرو، استاد کی، پولیس والے کی، اور پھر حکمران کی بھی، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک ایک اچھے مسلمان کا تصور ایک خاموش اور فرما بردار شخص کا ہے، ایسا شخص جو کسی کو ناراض نہ کرے، جس کا سر ہمیشہ جھکا ہوا ہو۔ ہمیں کبھی صحت مند نبوی اختلاف رائے سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ دیانتداری سے بات کیسے کی جائے، صحت مند گفتگو کیسے کی جائے۔ تو اصل میں یہ انسان کی، مسلمان کی تشکیل کے بارے میں، انسان ہونے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے صدمات برداشت کیے ہیں، اگر آپ کے پاس نسلی صدمات ہیں، آپ کے والدین نے نکبہ یا تقسیم ہند کا سامنا کیا ہے، تو آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ آپ کو کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے خود شناسی حاصل کرنا ضروری ہے۔ سنجیدہ علمی مطالعہ تو دور کی بات ہے، کیونکہ اگر خود شناسی نہ ہو تو آپ اپنے نفس اور خود پسندی کے ان نفسیاتی اور روحانی جالوں کو اپنے علم میں شامل کر سکتے ہیں، اور ہمیں مزید خود پسند علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں واقعی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عاجز ہوں، خود شناس ہوں اور مکالمے کے لیے تیار ہوں۔ یہی چیز ہمیں امت میں زیادہ چاہیے۔ ڈاکٹر فرح، آپ حال ہی میں یروشلم گئیں اور آپ نے اسرائیلی حکومت اور خاص طور پر الاقصی اور یروشلم میں اس کی سرگرمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ برائے کرم ہمیں اپنے اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی ہاں، جب میں وہاں تھی تو یروشلم میرے لیے بہت جذباتی جگہ ہے، کیونکہ یہ واحد جگہ ہے دنیا میں جہاں میں واقعی اپنے آپ کو گھر محسوس کرتی ہوں۔ اور القدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 1 انچ بھی ایسا نہیں جس پر کسی نبی یا ولی نے قدم نہ رکھا ہو، تو اس کا ہر انچ مقدس ہے۔ لیکن اس ساری خوبصورتی اور تقدس کو اور انسانیت کی اس علامت کو ایک ایسے بالادست نظام کے ہاتھوں گھٹتے اور بے حرمتی ہوتے دیکھنا جو صرف 70 کلومیٹر دور مقامی آبادی کی نسل کشی کر رہا تھا، دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یروشلم کی دیواریں ہمیں پکار رہی ہوں، ضمیر رکھنے والے لوگوں کو آواز دے رہی ہوں، تم کہاں ہو؟ اے وہ لوگوں جو مکہ کے قبلہ رخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور حج کے لیے جاتے ہو اور ہر سال کروڑوں خرچ کرتے ہو۔ اور وہ جگہ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور یروشلم کے لوگ، مقامی باشندے، ہمیشہ کہتے ہیں برائے کرم ہمیں ملنے آئے۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اب بھی اسلام کے پہلے قبلے اور اس وحدت کی طاقت کے بارے میں فکر مند ہیں جو یروشلم میں واقعی موجود ہے۔ اور یہ بہت افسوسناک تھا، لیکن ساتھ ہی میں نے وہاں اس نظام کی کمزوری اور ناپائیداری بھی دیکھی، نسلی امتیاز والے اس نظام کے سیکیورٹی نظام کی۔ سپاہی خوف زدہ تھے، وہ کسی عرب یا مسلمان کی آنکھوں میں آنچیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور یہی بات مجھے افسردہ کرتی ہے کہ یہ سب کچھ، آپ جانتے ہیں، قرآن ان ڈھانچوں کو مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور قرار دیتا ہے۔ اس دشمن کی حقیقت کمزوری ہے، اور پھر بھی ہمارے دلوں میں تقریباً ایسا خوف بیٹھا ہوا ہے جیسے عبادت کی حد تک کہ ہم اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، یہ بہت طاقتور ہیں، یہ بہت مضبوط ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود جانتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں۔
वो जानते हैं कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। वो जानते हैं कि वो एक आबादकार नौआबादियाती गैर मुल्की वजूद हैं जो एक ऐसी सरजमीन पर हैं जो उनकी नहीं है। तो सहीफा हमारे साथ है, अकीदा हमारे फौज है, तारीख हमारे साथ है, और फिर भी हम अब भी उनकी दास्तान, उनके हिसाब किताब से डरते हैं। वो क्या चाहते हैं और मंसूबा बंदी करते हैं और देखते हैं। ये मेरे नजदीक अच्छी हालत और हमारे इज्तिमाई सेहत के लिए एक झटका है। ईमान। डॉक्टर फरहा शरीफ, मेरे ख्याल में ये वाकई एक दिलचस्प गुफ्तगू रही है। जज़ाकल्लाह खैर। आज आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वायकम, मुझे रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बराए करम हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना याद रखें और मेरी वेबसाइट पर जाएं, सोचे मुस्लिम हफ्तावार न्यूज़लेटर। जज़ाकल्लाह खैर।